Hey guys, welcome back to the channel and you all are welcome to yet another vlog. So today's topic will be very important. Today it will be about how to take admission into BDS by taking loan. जी हाँ, many people have aspirants, like many have lot of expectations कि they will grow up in their career after doing BDS. But what is the problem? Finance is the problem. They don't get proper amount to pay the fees. As we all know, in all the dental colleges, the fees is more than 2.5 to 3 lakhs. Because many persons, they are coming from middle class family or they are from the lower socio-economic status, and many may not get government colleges because government colleges are very less in number. So that's why we want to take loan from the bank. अब कैसे लेना चाहिए बैंक में लोन? So in order to take a loan from the bank, it is always advisable, tip number 1, कि that you take loan from a government bank. You should not take loan from any like you should not mortgage anything and then take the loan. Okay, so like mortgage your house and take the loan. So you should always approach a government bank, and government is also giving at less percentage education loan. So right now what you have to do is, first of all, whatever your assets are there, like suppose you are having a LIC policy, or you are having some mutual fund bonds, or you are having some kind of fixed deposit. If your parents, so you all are studying, you don't have money, right? Your parents are having money. So what you have to do is, you have to go to a chartered accountant, and then you have to first file income tax return for the first 3 years. So there is a rule ki if you go to any bank and if you want to take loan, first they will tell what is your income. They will ask, if you are taking loan, will you be able to return it back? So that's why you need to file an income tax return, even if your income is not more than 5 lakhs. Suppose your parents' monthly income is 25 to 30,000 rupees or 50,000 rupees, and if they have not saved enough amount for paying your fees, so what they have to go to the bank, they have to tell the bank कि मेरा इतना इतना job है, and they have to give their salary slip. Means whatever bank account they are having, they have to take all the printouts and they have to give to the bank. So the bank only will tell you what all documents you need, and it's very important that if you have a wish inside you कि that you will do good, and you have to come up to your parents expectations. ऐसा नहीं कि उन्होंने कष्ट करके लोन ले लिया, उसके बाद आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और मस्ती कर रहे हो और आपने सीरियसली नहीं लिया अपने इस BDS को, तो फिर क्या होगा, आपको पेरेंट्स को बहुत दुख होगा. सो दैट इज अ थिंग. अगर आपको लोन लेना है, आपको अपने पेरेंट्स के साथ एक चार्टर्ड अकाउंट के पास जाके आपको जितना भी IT रिटर्न जो होता है, इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस. और अगर आपने पहले से ही IT रिटर्न किया हुआ है आपके पेरेंट्स ने, दैट इज अ वेरी इजी, आपको आराम से लोन मिलेगा. अच्छा, अगर आप इंडिविजुअल हैं, आप अपने नाम पे लोन लेना चाहते हैं, कि जैसे कि आपको खुद लोन लेना है, तो अगर आपको कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है, अगर आप यूट्यूब से कमाते हैं या फिर आप कोई भी बिजनेस है आपका और आपको BDS करना है, अगर आपको बिजनेस, आपको ऑब्वियसली मैं एक गलत बात बोल रहा हूँ कि बिजनेस है तो क्यों कोई BDS करेगा, लेकिन काफ़ी लोगों का एस्पिरेशन होता है कि वो डॉक्टर बने या फिर ग्रेजुएशन करें. तो BDS की फीस अप्रॉक्सीमेटली होती है हर ईयर 5 lakhs. तो 4 years को मिला के 20 lakhs के आसपास आपको बजट होना चाहिए. तो एक बार में बैंक आपको 20 lakhs नहीं देता है, हर साल की फीस आपको प्रोड्यूस करनी होती है, एंड यू नीड टू गेट रिसिप्ट फ्रॉम द कॉलेज, और उस रिसिप्ट को आप बैंक में शो करते हैं. उस रिसिप्ट के बेसिस पे बैंक आपको लोन देता है. तो लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड. यू नीड टू गेट फुल एड्रेस प्रूफ, देन योर proof of your job where you're working, then you need recommendation letters from where you're working. तो ये सब पेरेंट्स के लिए भी वीडियो है और उन सब बच्चों के लिए भी है जो कि लोन लेना चाहते हैं बैंक से. देखिए, मैंने भी बैंक में लोन लिया है. लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है. मैंने लोन लिया था क्लिनिक ओपनिंग करने के लिए, वो भी 2 बार. फर्स्ट क्लिनिक करने के टाइम मैंने लोन लिया था, और कार भी मैंने लोन पे लिया था. तो लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, हालांकि आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा देना होता है. अभी मैं अपना जो पर्सनल लोन मैंने लिया था वो मैंने, तो आप क्या कर सकते हैं, जितना आपका EMI आएगा, तो जो भी EMI आप कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप लोन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 lakhs का लोन ले रहे हैं, तो आप उसको सपोज 5 साल में वापस करना चाहते हैं,
या फिर आप उतना अमाउंट आप नहीं देना चाहते तो उसको आप 7 साल का एक्सटेंड करवा लीजिए। तब अगर आप 7 साल का लोन ले रहे हैं तो आपको मंथली कम आ जाएगा, 6,000 7,000 आएगा। अगर आप 5 साल का लोन ले रहे हैं तो आपको मंथली ज्यादा आएगा। तो अपने सैलरी और इनकम के हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा कि कितना पैसा देना आपको कंफर्टेबल लगेगा। अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैं जितना भी लोन लिया हूँ 1 साल 2 साल में दे दूंगा, तो आप पे प्रेशर आएगा बहुत ज्यादा। तो लोन ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा लोन लेके और कम टाइम रखें उसको रीपे करने के लिए। रीपे आप कभी भी कैसे भी कर सकते हैं, पर ईएमआई कम होना चाहिए। जैसे कि अगर मेरा कार लोन है फॉर एग्जाम्पल, तो आई एम गिविंग 6,500 रुपीज पर मंथ, तो मेरे लिए बहुत ईजी है। मुझे पता ही नहीं चलता कि कब पैसा अकाउंट से कट गया। तो कभी कभी जब कुछ कुछ एक्स्ट्रा पैसा आता है तो मैं 3,000 5,000 8,000 10,000 एक्स्ट्रा दे देता हूँ ताकि मेरा लोन जल्दी खत्म हो जाए। इससे क्या होता है, इंटरेस्ट बचता है। और अगर आपको रियलिटी में अगर आपको बीडीएस करना है, आपको मन से एक अच्छा डॉक्टर बनना है, तो दुनिया का कोई भी बंदा आपको रोक नहीं सकता वो करने से। तो ऑलरेडी सीट्स कम है बीडीएस में, तो हर कोई को गवर्नमेंट सीट नहीं मिल सकता। तो प्राइवेट कॉलेजेस में फीस तो ज़्यादा होती है थोड़ी बहुत। तो हॉस्टल फीस रहता है, बुक्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे कोई रिलेटिव होते हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं, तो ये एक और तरीका है कि आप यू कैन टेक द मनी फ्रॉम योर रिलेटिव्स डिफरेंट, और आप एटलीस्ट 1 ईयर का फीस आप किसी से लोन लेके, मतलब पर्सनल लोन, जैसे कि किसी चाचा अंकल इन सब से लेके आप भी दे सकते हैं। पर अगर उसके लिए उतना क्लोज होना ज़रूरी है पहले तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए। एंड दिस इज़ द वे लाइफ गोज ऑन। लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं लोन लूंगा तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, नहीं रीपे कर पाऊंगा। बिना लोन के आप कुछ आगे बढ़ नहीं पाएंगे। लोन लेना बहुत ज़रूरी है। तो टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे, लव यू ऑल।